आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। Assalamu alaikum dear students. This topic is surface tension, but I have actually taught this in the previous lecture. Now in this lecture we will discuss the molecular theory. Okay, molecular theory of the surface tension. In last lecture we discussed the surface tension definition, its units and as many more things, but here we will discuss the molecular theory of surface tension in order to understand it and delve deep into it. Okay, now today's topic is the surface tension, its molecular theory. This is for the class 11th students. Okay, so I hope the students will watch this lecture keenly and try to understand what I am actually trying to deliver to them. So here you can see, my dear students, if we will take here a jar of, or I can say a beaker of the water. So like this is a beaker of water or any liquid. It is not necessary that you will take this water, you can take any liquid. Okay, so I choose two particles, one inside the liquid and one on the surface. So one inside the liquid like this. So my dear students, suppose this is the molecule, because it's a molecular theory, I choose two molecules, one inside and one on the surface, and one on the surface like this. Suppose this molecule we named as P, and this molecule we name as Q. We name as Q and here we name it as P. So it has sphere of influence. What is sphere of influence? It is a sphere जो हमने draw out किया when we take the radius equal to the molecular range. तो जब हमने एक sphere of influence यहाँ draw करना है तो that will be like this. It will be attracted everywhere like this, everywhere it will be attracted like this. Look my dear students, everywhere. So what is the net force on this molecule P? Because if the force is on the right side, there is a pair which is on the left side. If it is on this side, so there will be on front side, so on back side there will be another attractive force, molecular force. So the net force acting on this molecule will be 0. So ये खामोशी से बैठेगा, ठीक है. लेकिन जो Q है, इसका sphere of influence जो है वो suppose ऐसे है sphere of influence. Okay, now sphere of influence पे देखिए, डाउनवर्ड्स इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कर पाएंगे, लेकिन अपवर्ड्स कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, कौन करेगा अट्रैक्ट? देयर इज नथिंग टू विच अट्रैक्ट्स दिस मॉलिक्यूल. इम्बैलेंसिंग हो गई, इम्बैलेंसिंग. नेट देखिए कितने फोर्स हैं, इनको आप ऐड कीजिए वेक्टर लॉ यूज करके, ये भी फोर्स चलिए ये दो बैलेंस हो गए, छोड़िए इन दोनों को, ये तो है, कितने फोर्स हैं वो सारे एड अप, देयर विल बी रिजल्टेंट नेट डाउनवर्ड फोर्स. उनको एड अप कीजिए आप जो भी वेक्टर लॉ यूज करेंगे, क्योंकि ये छोड़िए सपोज बैलेंस हो गए ये वाले, लेकिन ये वाले सारे एडअप हो जाएंगे और उनका रिजल्टेंट जो आ गया वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा. ओके, गॉट इट. सो ये जो क्यू पार्टिकल है, क्यू मॉलिक्यूल है, दिस क्यू मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस फोर्स डाउनवर्ड्स. जबकि पी है, हमने जो इनसाइड कोई मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया था उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स में बोल रहा हूँ, फोर्स तो बहुत सारे लेकिन नेट फोर्स 0. लेकिन यहां पर इसको नेट फोर्स है, दैट टू इज डाउनवर्ड्स. अब देखिए, अब हम चाहते हैं, खुद तो नहीं, ये तो नेचुरल नहीं ये प्रोसेस है, अगर हम इसको चाहे कोई मॉलिक्यूल यहाँ से ऊपर लाए, सरफेस पे लाए हम कोई मॉलिक्यूल, देखिए जनाब वो खुद तो नहीं आएगा ना, बिकॉज देयर इज अ डाउनवर्ड फोर्स, वो खुद नहीं आएगा. और जब आप किसी भी पार्टिकल को किसी के फोर्स अगेंस्ट चला रहे हो, देन वर्क इज टू बी डन, आपको वर्क डन करनी पड़ेगी, खुद कुछ नहीं हो जाएगा उस वक्त. यानी किसी भी फोर्स के अगेंस्ट जब आपको जाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन. ये फिजिक्स का कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं. तो देयरफॉर अगर कोई मॉलिक्यूल आपको सरफेस पे लाना है तो आपको वर्क डन करनी पड़ेगी. तो वो जो आप वर्क डन करोगे वो वहां पर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. कोई भी मॉलिक्यूल जो आप नीचे से ऊपर तक लाओगे, आपको वर्क डन करनी पड़ेगी. किस फोर्स के अगेंस्ट? जो सरफेस मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, वर्क डन. एंड वर्क डन विल बी स्टोर देयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका मतलब है सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है. अब बताइए, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना अनस्टेबल होता है. तो जो सरफेस जो इस लिक्विड की है, जो हमने सिलेक्ट किया, हमने वाटर किया, आप कोई भी लिक्विड बोल सकते थे, जो उसकी सरफेस है उसके पास ज्यादा एनर्जी है. चूंकि ज्यादा एनर्जी है तो वो अनस्टेबल कंडीशन की तरफ जा रहे हैं. अब एक सरफेस क्या चाहती है कि मुझे ना स्टेबिलिटी आ जाए, तो वो स्टेबिलिटी क्या चाहती है, वो कोशिश करते हैं मैं लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे रखूं.
ठीक है ना। तो इस जो ये प्ले होता है, ये जो एक किस्म की जो गेम यहाँ पर हो रही है अंदर से, तो इसमें ये क्या होता है कि वो चाहता है कि मुझे कम से कम मॉलिक्यूलर सरफेस पे रहे। इसका अदर वे राउंड में ऐसा बोल सकता हूँ कि ये चाहता है मेरा सरफेस एरिया कम हो जाए। सो ये जो दैट मीन्स जो ये वहाँ पर टेंशन क्रिएट होता है ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वहाँ एनर्जी होती है, अनस्टेबल कंडीशन होती है पुरुष एनर्जी की वजह से, वो सरफेस चाहती है मेरा कम एनर्जी रहे, यानी कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहाँ सरफेस पे रहे, यानी कम सरफेस ऑफ एरिया रहे। तो उसी में उसका टेंशन वहाँ पर बनता है, जो मैंने बताया, इट ट्राइज टू पुल अपार्ट द सरफेस अलॉन्ग द इमेजिनरी सरफेस। तो जैसे मैंने बताया कि वो एग्जाम्पल कि हम विंटर्स में जब से वो जो फैरन पहनते हैं, हम अंदर से उसको पुल अपार्ट करने की कोशिश करें, मगर साथ साथ में हम चाहते हैं उसका मिनिमम एरिया रहे। बट ये एक वो एग्जाम्पल है, बट इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। सरफेस टेंशन कुछ इस तरह का है कि पुल अपार्ट करता है इमेजिनरी लाइन को, क्योंकि ट्राई टू अटेन द मिनिमम सरफेस एरिया, ये उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आ रहा है सरफेस टेंशन के। तो फिर बताए जब एनर्जी है तो हमने पहले सरफेस टेंशन बोला, वो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फिर तो यहाँ एनर्जी का कंसेप्ट आ गया। तो फिर एक और डेफिनेशन साइंस को देनी पड़ी, दैट्स कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, देखिए सरफेस एनर्जी, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? ये सरफेस एनर्जी है, यही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया जो मैं बता रहा हूँ, जो सरफेस पे है, सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट एरिया, ये है। मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो आप इसको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। देखिए मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ, ऐसे एक फ्रेम है लाइक दिस, ये फ्रेम है, देखिए बेटा ऐसा फ्रेम है। अब इसके बाद क्या होगा, से सपोज दिस इज ए बी सी डी, ए दिस फ्रेम इज नेम्ड एज ए बी सी डी फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एंड दिस इज मूवेबल, दिस ए बी द साइड इज मूवेबल, we can move it on AD and we can move it on CB, okay? और फॉर एग्जाम्पल हमने इसको यहाँ तक पहुँचाया, ये पहुँचाया यहाँ तक, से दूसरी मैं बताऊँगा आपको क्या हो जाएगा। ओके हम क्या करेंगे इसको, दिस इज मूवेबल साइड, सपोज द साइड इज ऑफ लेंथ L, ये सपोज लेंथ L का है, साइड मान लीजिए लेंथ L का है। तो यहाँ पर जब इसमें हम फिल्म डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे, यानी सोप सोल्यूशन में डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल सोप सोल्यूशन में डाला तो यहाँ एक फिल्म डेवलप हो गई। सो वी डेवलप्ड हियर फिल्म, आफ्टर वी डिप इट इनसाइड ए सोप सोल्यूशन, सो ये फिल्म, पता है क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इनसाइड, ठीक है। ये चाहता है मुझे कम से कम एरिया रहे, बताया मैंने क्यों चाहती है कम से कम रहे, ताकि इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी। और ये हमारा फोर्स नहीं है, ये सरफेस टेंशन का फोर्स है। ये वहां से जो प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड सरफेस एट रेस्ट है, उस प्रॉपर्टी की वजह से ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो जब ये खींचेगा, सपोज खींच के व्हेन इट पुल्स इट इनसाइड, सपोज इट रीचेस टू द A dash B dash like here, and suppose it displaces by x, suppose ये displacement x है। so अगर कोई बताएगा एरिया वाइज कितना एरिया कम हुआ, so length into breadth, so length into breadth is x, so Lx, this area is getting reduced, okay, because of what, because of surface tension। जरा देखिए सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सरफेस टेंशन किसके बराबर यहाँ पर होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन जब आप कैलकुलेट करोगे, यू नो T जो होगा, T is equal to force per unit length, this is the basic definition of surface tension, this is force per unit length। but बेटा एक चीज याद रखना, this surface tension is the property of the surface of a liquid at rest, free surface of a liquid at rest। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल ली ना, इसके दो सरफेस हैं, ये आपको याद रखना है। देखो ऊपर भी सरफेस है, नीचे भी। जो मैंने पहले लिक्विड लिया था ना, उसकी एक ही फ्री सरफेस थी ऑन द वेपर साइड, इसमें साइड में था, लेकिन लिक्विड साइड में वो फ्री नहीं था, तो इसलिए। लेकिन हमारी ये सिचुएशन जो है ना, दो साइड सरफेस है, तो यहाँ पर आपको ट्वाइस सरफेस टेंशन लेना पड़ेगा, ट्वाइस T इज इक्वल टू FL। सो यू विल गेट दिस विद 2T into L, दैट्स इक्वल टू F। सो F comes out to be twice TL, this is force which is getting developed there because of the surface tension। ये आपको समझ में आया शायद। नव अब जो सरफेस टेंशन है वर्क डन की, ये वर्क डन किसने की, ये सरफेस हमने तो नहीं किया, हमने तो मूव नहीं कराया ना, ये सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से हो गया। तो सरफेस टेंशन की फोर्स की वजह से कितनी वर्क डन हो गई, तो हम बोलेंगे वो वर्क डन जो होगी सरफेस टेंशन की, वो जो उसने फोर्स उस पर लगा लिया और उसने कितना इसको डिस्प्लेस किया, सो एक्स डिस्प्लेस किया, उसने डिस्प्लेस किया, मूव कराया अंदर की तरफ एक्स। सो वर्क डन इज फोर्स, और वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स। फोर्स अभी हमने निकाल दिया कितना, ट्वाइस TL है ना, यहाँ पर है ना ट्वाइस TL फोर्स, वो यहाँ पर दीजिए, और एक्स। सो द W इज ट्वाइस TL x, ये देखिए ट्वाइस TL x। अब देखिए यही W जो है ये स्टोर होती है वहां पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये W जो स्टोर हुई वहां पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब है U, देयरफॉर U क्या है हमारा, U जो है ट्वाइस TLx, ये देखिए ट्वाइस TLx। अब यहां से मैं बता रहा हूं, यहां देखिए आप,
twice TLX. Now surface energy, surface energy, surface energy, surface energy किसके बराबर आएगा? देखिए सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी किसके बराबर आएगा? वो आएगा पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी यू है वहां पर, यू मीन्स हियर पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज ट्वाइस TLX, ठीक है ना, ये है यू पोटेंशियल एनर्जी, और ये एरिया में ए से लिखता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यू, दैट इज 2 TLX डिवाइड बाय एरिया, कितना एरिया बताइए, कितना एरिया इसने लिया, कम रिड्यूस किया, दैट इज LX, तो मैं यहाँ पर LX लिखूँ, A इज इक्वल टू LX, सो वेयर आवर A इज हियर LX, ओके, सो नाउ LX, और यस, और एक बात, चूंकि A जो है ये LX है, मीन्स ये एरिया, बट ये दो साइड की सरफेस है, तो यहाँ ऊपर वाले साइड का LX, नीचे वाले साइड का LX, तो यहाँ पर ट्वाइस LX आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 सरफेस है, तो हियर आल्सो 2, so this 2 will get cancel out, this LX will cancel out, तो सरफेस एनर्जी comes out to be, सरफेस एनर्जी जो आपको कितनी आई, वो T के बराबर आई, न्यूमेरिकली याद रखना, दिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन, दिस नॉट इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट अलग है, दैट्स एनर्जी, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट अलग है, ठीक है ना, लेकिन हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल इक्वल टू, यानी जो वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इनका सेम होगा, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन का कंसेप्ट अलग अलग है, जैसे मैंने आपको बताया कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, तभी हम इसको बता रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकली दे आर सेम, सो जो भी आंसर आपका सरफेस टेंशन का आएगा वही आंसर आपको लिखना पड़ेगा सरफेस एनर्जी का, एनर्जी पर यूनिट एरिया, सो न्यूमेरिकली दे आर सेम, ओके, सो आप बोल सकते हो सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। बेटा ये समझ में आया आपको? होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ठीक है। अगर कोई क्वायरी होगी फिर आप मुझे मेल पे लिखोगे, मैं मेल एड्रेस दूंगा आपको इसी क्लास में, क्या क्वायरी है मैं आपको बताऊंगा, और यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, ओके। अब देखिए फर्दर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ाना कुछ कैपिलरिटी के बारे में है, लेकिन मैं बेस बनाऊंगा, पहले आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, मैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये खत्म, ये सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर थ्योरी जो मैंने आपको बताया, मसला खत्म। अब जो हम फर्दर जा रहे हैं किसके ऊपर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स प्लीज बी अटेंटिव, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पर एक ना लिक्विड लूंगा, 2 किस्म के लिक्विड लूंगा, एक वाटर लूंगा, ये वाटर है, मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज ये वाटर है, और दूसरे में मैं मरकरी लेता हूँ, ठीक है। एक लो विस्कस फ्लूइड एंड अनदर इज हाई विस्कस फ्लूइड। और हम एक काम करेंगे यहाँ पर, सपोज इसमें मरकरी है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए मरकरी है, ये मरकरी है, इसमें मैं थोड़ा सा 2 कैपिलरी ट्यूब यहाँ लूंगा, एक तो कम डायमीटर का, ये कैपिलरी ट्यूब जो होता है ना, ये फाइन बोर, जिसमें बोर का जो डायमीटर होता है वेरी वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द लेंथ, बहुत कम है। अगर आपको दिखेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ ये है, ये अगर आपको दिख रहा है, दिस इज कैपिलरी ट्यूब, मतलब देखिए लेंथ कितनी है, लेकिन इसका जो है हेयर थिकनेस के बराबर भी उसका डायमीटर नहीं है अंदर। सो ये देखिए, इसको हम बोल सकते हैं कैपिलरी ट्यूब, ए ट्यूब विच इज having large length and its diameter is very very small compared to its length। so ये वही है, लेकिन डिफरेंट डायमीटर्स के ट्यूब हमें आ रहे हैं। मैंने 2 किए थे इस्तेमाल, एक ये है, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो हम 2 डायमीटर्स के ट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 डायमीटर्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आपको बताना है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसलिए मैं आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर समझाऊंगा एक के ऊपर, ठीक है। एक नेक्स्ट में बताऊंगा, सारा पूरा मैं बताऊंगा। मैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझाऊंगा। लीजिए आप ट्यूब, थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, बड़ा सा ट्यूब लूंगा ताकि यू अंडरस्टैंड इट। हालांकि होता है छोटा है, लेकिन मैं बड़ा क्यों ले रहा हूं, ताकि आपको अंडरस्टैंड कराऊं, इसलिए बड़ा ले रहा हूं, वरना इतना बड़ा नहीं होता है। मैंने पहले जो दिखाया था वो करेक्ट था, लेकिन क्योंकि समझाना कुछ है इसलिए वो रब किया और इसको थोड़ा वाइड किया। अब यहाँ क्या है, चूंकि जो ये लिक्विड है वाटर, ये थिन लिक्विड है, तो इसका जो मिनिस्कस बनता है वो कनकेव बनता है। बेटा क्या बनता है, कनकेव। तो जब भी वाटर इसके साथ टच करता है वो कनकेव मिनिस्कस बनाता है। अब मरकरी में क्या होता है, मरकरी में अपोजिट होता है। यहाँ पर मैं जब ट्यूब इसमें डाल दूंगा, या कोई भी सॉलिड, जरूरी नहीं है कोई भी सॉलिड, ये ट्यूब जरूरी नहीं है, आप सॉलिड रॉड भी डाल सकते हो, फिर अंदर नहीं दिखाना है। यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है। अगर ये ट्यूब नहीं होगा, तो मतलब आप एक काम कर सकते हो, जरूरी नहीं, अगर ये रॉड होगी तो ये वाला आपको मिनिस्कस नहीं दिखाना है, मतलब ये तो सीरीज रॉड होगी, है ना, तो ऐसे करोगे तो फिर ये मिनिस्कस नहीं दिखाना है अगर ये रॉड होगी, ठीक है, लाइक दिस। और अगर ये भी रॉड होगी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर लिक्विड नहीं दिखाना, कोई मिनिस्कस नहीं बनेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, तो ये एक रॉड है, लाइक दिस।
बट साइड में तो ये देखो, ये वाटर में कनकेव मिनस्कस, ये देखिए कनकेव मिनस्कस, लेकिन मरकरी में कॉन्वेक्स मिनस्कस, कॉन्वेक्स मिनस्कस। अब जरा देखते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं ना देखो क्या करता हूं, मैं यहाँ एक काम करता हूं, मैं यहाँ एक टेंजेंट डालता हूं, टेंजेंट, बिकॉज द टेंजेंट जो है वहीं से सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ये देखिए सरफेस के ऊपर, दिस विल बी द ओके, मैं एक टेंजेंट डालता हूं और ये टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है थीटा, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बट हियर इन दिस केस अगर आप यहां देखोगे, यहां जब टेंजेंट डालोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड द सॉलिड, यहां ऐसे बनने को, सो द थीटा इज हियर लाइक दिस, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने टेंजेंट डाल दिया, किसको, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं यहां लिखता हूं दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या डालना है, एक टेंजेंट आपको डालना है, ओके। ऐसे बोलोगे व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, द एंगल बिटवीन किस किस के दरमियान, टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है, किसको टेंजेंट है, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, एंड द पार्ट ऑफ सॉलिड व्हिच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, ये होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थीटा जो है, जो थीटा से यहां पर मैं बोलता हूं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो ये थीटा है, व्हाट इज दिस एंगल, दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये टेंजेंट, किसको ये टेंजेंट है, टू द पॉइंट, किस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके दरमियान है, सॉलिड एंड लिक्विड, ये सॉलिड रॉड है, ये सॉलिड है, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, एंड द सॉलिड पार्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, जो सॉलिड पार्ट इमर्स्ड लिक्विड है इसके बीच में। तो देखिए इधर भी फिर से वही कॉन्वेक्स भी लीजिए, इट इज एंगल बिटवीन, फिर से वही है एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड द सॉलिड एंड द सॉलिड व्हिच इज इमर्स्ड इन द लिक्विड, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन एक चीज है, इन केस ऑफ वाटर जिसमें कॉन्केव मिनस्कस है, देखो कॉन्केव मिनस्कस, जिसमें कॉन्केव मिनस्कस है उसमें पॉइंट ऑफ दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक्यूट है, वो लेस देन 90 है, वो लेस देन 90 है। लेकिन जो जिसका कॉन्वेक्स मिनस्कस है, फॉर एग्जांपल मरकरी का कॉन्वेक्स मिनस्कस जिसका है, उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनता है बेटा, उसका बनता है obtuse, ओके। इसका है लेस देन 90 डिग्री, उसका है ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो जो भी कॉन्वेक्स मिनस्कस बनाएगा जब सॉलिड के साथ आएगा, तो उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक्यूट है, और जो कॉन्वेक्स मिनस्कस बनाएगा उसके लिए जो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो obtuse है, ओके। मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपका प्योर वाटर होगा और कांटेक्ट में किसको होगा, प्योर गिलास, ठीक है, प्योर वाटर प्योर गिलास, ये जो मटेरियल्स हैं, अगर ऐसा आएगा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आपको याद रहेगा। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, आपको याद रहेगा, मैं यहां लेता हूं जो कॉम्बिनेशन है, कौन सी कॉम्बिनेशन है, प्योर वाटर एंड प्योर गिलास, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स है। तो इनका जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा कितना है, थीटा इनका कितना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं थीटा कितना है। देखिए थीटा कितना है, अगर प्योर वाटर प्योर गिलास है तो ये है 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर वाटर और गिलास है, यानी इम्प्योर वाटर इम्प्योर गिलास, यानी प्योर नहीं है, तो इसका जो है ये 8 से लेकर 18 डिग्री तक होता है ना, एक्यूट है ना। अगर यहां पर होगा मरकरी, अगर होगा मरकरी और यहां पर गिलास होगा, ठीक है, मरकरी गिलास अगर होगी कॉम्बिनेशन, तो इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है थीटा वो होता है 138 डिग्री। ये देखिए इधर देखिए बेटा, समझ में आ रहा है। फिर से मैं बोलता हूं, प्योर वाटर प्योर गिलास के लिए 0, वाटर गिलास के लिए 80 से 18 डिग्री, एंड वाटर जो है मरकरी और गिलास के लिए है 138। और हम जानते हैं मरकरी गिलास जब होगा उसका कन्वेक्स मिनस्कस होता है और उसका obtuse होता है, लेकिन obtuse कितना है 138 डिग्री यहां पर है। तो जब वाटर गिलास होगा उसका जो कनकेव मिनस्कस बनता है हम जानते हैं उसको एक्यूट होता है, और एक्यूट कितना है 8 to 18 डिग्री। लेकिन याद रखना है प्योर वाटर प्योर गिलास में 0 डिग्री होता है, ठीक है, 0 डिग्री होता है। तो मैं आपको ये चीज आपको बताया, इसलिए एक बात और मैं बताने जा रहा हूं। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ और मैं बताने जा रहा हूं, ये आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। बेटा कीनली इंटरेस्ट, कुछ क्वायरी होगी, यू कैन देन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल एड्रेस, वो मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब फर्दर मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बतानी है मेरे को वो ये है कि मैं इस हिसाब से आपको अब बताऊंगा
कि एक्सेस प्रेशर या एक्सेस फोर्स, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड एक्सेस फोर्स बताऊंगा, एक्सेस फोर्स, ओके, एक्सेस फोर्स और प्रेशर डिफरेंस, ओब्लिक प्रेशर डिफरेंस, वो भी इसी से आएगा, प्रेशर डिफरेंस across लिक्विड सरफेस। अब हमें ये पढ़ना है कि कभी कभी पूछा जा सकता है कितना है कि लिक्विड सरफेस के इर्द गिर्द कितना है, जो है कितना आपको ये है एक्सेस फोर्स और एक्सेस प्रेशर, ओके, जो है आपको बताना पड़ेगा लिक्विड सरफेस में क्या है। ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, छोटा मोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना है। सरफेस कितनी होगी, या तो प्लेन सरफेस होगी, ठीक है ना, प्लेन सरफेस होगी लिक्विड की, या तो प्लेन सरफेस होगी बेटा, या तो कर्व्ड सरफेस होगी। इसको अंडरस्टैंड करो, या तो कर्व्ड सरफेस होगी, दो में से एक ना, या तो प्लेन सरफेस होगी या तो कर्व्ड सरफेस होगी। अब प्लेन तो एक ही है, कर्व्ड में दो है। कर्व्ड में या तो कनकेव होगी, या तो कनकेव सरफेस होगी, या तो कॉन्वेक्स होगी। कर्व्ड में ये दोनों हमें बोलना आपको क्या है वो देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। प्लेन सरफेस जो है, देखिए प्लेन सरफेस जो है ये ऐसे, इसमें टेंशन जो है सरफेस टेंशन दैट विल एक्ट टेंजेंशियल लाइक दिस इज प्लेन सरफेस। और कोई भी मॉलिक्यूल होगा, इमेजिनरी लाइन या मॉलिक्यूल, टेंजेंशियल होगा सरफेस टेंशन, टेंजेंशियल इधर को एक नेट फोर्स जो इसके ऊपर होगा जीरो होगा, ठीक है ना। लेकिन कनकेव में ऐसा है, ऐसी सरफेस है, ऐसी कनकेव सरफेस है। मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल यहां सिलेक्ट किया, एक कंपोनेंट सरफेस टेंशन का इधर, एक इधर, ठीक है, और इसका रिजल्टेंट यहां से आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, गॉट इट। और अब बताइए अगर ये कनकेव है, ये कनकेव सरफेस है, यहां से टेंशन यानी अक्रॉस द टेंजेंट टू द सरफेस, यहां से टेंशन टेंजेंट टू द सरफेस, लेकिन रिजल्टेंट यहां से आया। तो जब रिजल्टेंट अपवर्ड्स है तो बेटा उस हिसाब से क्या होना चाहिए, जिनकी फोर्स जो है रिजल्टेंट इसको खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो ये स्ट्रेट बननी चाहिए थी, प्लेन, ये कनकेव नहीं रहनी चाहिए, बट स्टिल इट इज कनकेव। कहीं पर जो सरफेस रहती है तो भी वो कनकेव रहती है। तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हम बोलते हैं देयर मस्ट बी सम एक्सेस प्रेशर ऑन वेपर साइड। ये लिक्विड साइड है और ऊपर वेपर साइड है, ठीक है, ये लिक्विड साइड है, वो वेपर साइड है। तो सम एक्सेस फोर्स मस्ट बी ऑन द वेपर साइड एक्टिंग डाउनवर्ड्स। कोई एक्सेस फोर्स होना चाहिए जो कि एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, ताकि वो इस आर को बैलेंस करेगा, मैं फिर से बोलता हूं, अगर हमारे पास कनकेव सरफेस होगी तो चूंकि सरफेस टेंशन इज अलोंग द टेंजेंट, तो यहां से टेंशन इसका रिजल्टेंट यहां से आएगा। तो चूंकि वो कनकेव रहती है, अगर उसका रिजल्टेंट यहां से है तो वो प्लेन बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन रही है तो वो कनकेव ही रहती है। तो फिर इस फोर्स को कोई ना कोई बैलेंस करना चाहिए। तो हम बोलते हैं देयर मस्ट बी एक्सेस फोर्स on the vapor side of this concave surface so as to balance the resultant force coming out of the surface tensions, okay। लेकिन अगर अब कॉन्वेक्स होगी, like this कॉन्वेक्स, यहां पर एक सिलेक्ट करेंगे तो यहां से टेंशन, ठीक है, लिक्विड नीचे से है like this, तो रिजल्टेंट यहां से आएगा। देखो रिजल्टेंट यहां से, तो देखिए यहां से टेंशन, रिजल्टेंट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो ये अगर कॉन्वेक्स है तो ये प्लेन बननी चाहिए थी, बिकॉज दैट्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बट ऐसा नहीं है, ये स्टिल कॉन्वेक्स है। सो देयर मस्ट बी सम एक्सेस फोर्स इनसाइड द लिक्विड लाइक दिस, एक्सेस फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ये देखो ये एक्सेस फोर्स है, यहाँ पर दिस इज एक्सेस फोर्स, ये है एक्सेस फोर्स, दिस इज एक्सेस फोर्स, ये एक्सेस फोर्स है, सो देयर मस्ट बी सम एक्सेस फोर्स विच विल एक्ट अपवर्ड्स so as to balance the resultant, ठीक है ना। बट इन बोथ द केसेस हमने एक चीज सीखा, बोथ द केस, जिसे हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, वेदर इट इज कॉन्केव, वेदर इट इज कॉन्वेक्स, कर्व्ड सरफेस, मगर हमने एक चीज सीखा, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस फोर्स और एक्सेस प्रेशर, अगर पर यूनिट एरिया लेंगे तो प्रेशर बन जाएगा। एक्सेस फोर्स जो है दैट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द कॉन्केव साइड। देखो ये कॉन्केव साइड में, ये कॉन्वेक्स है, लेकिन एक्सेस प्रेशर कॉन्केव साइड में भी है, कॉन्केव साइड में। तो हम बोलेंगे आज के बाद हमें ये पता चला, चाहे कॉन्केव सरफेस है चाहे कॉन्वेक्स सरफेस है, जो एक्सेस फोर्स है, देखो जो एक्सेस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कॉन्केव साइड, इसको भी कॉन्केव साइड में, कॉन्वेक्स को भी लेकिन कॉन्केव साइड में ही एक्ट कर रहा है। तो नेट में हम लिखेंगे लास्ट में दैट हम ऐसे करेंगे, प्लेन में तो है ही नहीं, प्लेन में जीरो है, ये तो कर्व्ड सरफेस में हम बोलेंगे एक्सेस फोर्स इन कर्व्ड सरफेस, एक्सेस फोर्स, जो एक्सेस फोर्स होता है इन कर्व्ड सरफेसेस
जो कर्व्ड सरफेस होते हैं, कौन से कर्व्ड, चाहे कनकेव चाहे कॉन्वेक्स, इज एक्टिंग, वो एक्ट कर रहे हैं ऑन कनकेव साइड ओनली, कनकेव साइड ओनली। ये हमने सीखा इसे, कनकेव साइड ओनली ऐसे सीखा हमने। बेटा आप अंडरस्टैंड करो इसको, ठीक है, अंडरस्टैंड करना इसको। तो ये क्या, फिर से हम बताएंगे कि कर्व्ड सरफेस में जो एक्सेस फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो करता है ऑन द किस साइड में, ऑन द कनकेव साइड, वेदर इट इज कनकेव सरफेस वेदर इट इज कॉन्वेक्स सरफेस, बट एक्सेस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द कनकेव साइड ओनली। तो ये हुआ। तो उसके बाद में आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिर एक सिलेबस का ही पॉइंट है, एनसीईआरटी में है, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, इधर देखिए, मैं आपको बनाऊंगा एक्सेस प्रेशर, इसी का एक पार्ट मान लीजिए, सेकंड पार्ट, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड a liquid drop, a liquid drop, excess pressure inside a liquid drop, बेटा excess pressure inside a liquid drop, और कोई बोल सकता है लिक्विड के बदले रेन भी, सपोज अगर रेन बोलेगा तो वो भी लिक्विड है, तो आप रेन ड्रॉप भी लिख सकते हो, रेन ओब्लिक रेन ड्रॉप, ठीक है, वो एक ही जैसी बात है। जो एक्सेस प्रेशर, क्योंकि हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस में एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस फोर्स, जब एरिया उसको डिवाइड करोगे तो वो प्रेशर बन जाएगा। तो हमें पता है कर्व्ड सरफेस जहां पर होती हैं वहां पर एक्सेस फोर्स है, एक्सेस प्रेशर होता ही है। तो अगर हमें पूछा गया बताइए रेन ड्रॉप में एक्सेस फोर्स या एक्सेस प्रेशर कितना है, यहां पर एक्सेस प्रेशर बोलना है ना, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल रेन ड्रॉप है, ठीक है। हम इसको 2 इक्वल हॉलोज में लेंगे, एक मिनट, मैं इसको ऐसे 2 इक्वल हॉलोज में लेता हूं, लाइक दिस, ये देखिए 2 इक्वल हॉल्स, ये जो है सपोज इसका रेडियस r मान लीजिए, इसका रेडियस r है, तो जो फोर्स करेगा वो करेगा एक्ट कहाँ, कनकेव साइड में, सो एक्सेस फोर्स विल बी ऑन द कनकेव साइड, फॉर एग्जांपल एक्सेस विल बी ऑन द कनकेव साइड। सो जो इसका सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई r है, जो इस वाले पार्ट का एरिया होगा, सपोज ये इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 हॉलोज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऊपर वाला हॉलो है इस रेन ड्रॉप का, ठीक है, ये ऊपर वाला हॉलो है। तो अब देखिए, आप जो मैं इसमें प्रेशर कैलकुलेट करता हूँ, प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सेस फोर्स, ये है वो एक्सेस फोर्स, ठीक है। सो इसका ये मतलब है जो F है, दिस इज पी ए इज इक्वल टू एफ, सो पता चला F इज इक्वल टू पी ए, सो दिस इज द एक्सेस फोर्स इनसाइड ए रेन ड्रॉप, बिकॉज हमने देखा ये कर्व्ड है, ये कनकेव बनेगा, कनकेव साइड में एक्सेस फोर्स उसका होगा, हमने सीखा, द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द कनकेव साइड, ठीक है ना। तो यही वो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है ऑन द कनकेव साइड ऑफ द रेन ड्रॉप, F इज इक्वल टू पी ए, जो इनसाइड है इसका, है ना, इनसाइड ही है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे कनकेव साइड में पी ए। बट यहाँ पर चूंकि इक्विलिब्रियम है, तो ये एरिया जो है, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू पी पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज द एक्सेस फोर्स इनसाइड ए रेन ड्रॉप, हो गया एक पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट हम क्या करने जा रहे हैं, जो सरफेस टेंशन हमें क्या जवाब दे रहे हैं, ये तो प्रेशर से हमने लिया, अब सरफेस टेंशन क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन T जो है इस रेन ड्रॉप के ऊपर, बिकॉज लिक्विड का इसके ऊपर सरफेस टेंशन भी होगा, तो वो क्या हमें बताता है, बोलते हैं सरफेस टेंशन जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ये सपोज फर्स्ट है, इसको फर्स्ट नाम देंगे, ठीक है, फर्स्ट नाम देंगे इसको। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस फोर्स जो है वो वहां पर एक्सेस फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है, लेंथ मींस इसकी सरकमफ्रेंस, देखो इसकी सरकमफ्रेंस, इसकी लेंथ सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर, ये देखिए 2 पाई आर, इसका मतलब है T इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू एफ, यानी F पता चला, F इज इक्वल टू 2 पाई आर टी, शाबाश, 2 पाई आर टी, इसको हम सेकंड नाम देंगे। प्रेशर से हमें वो इक्वेशन एक्सेस फोर्स की मिली, यहाँ सरफेस टेंशन से ये फोर्स की इक्वेशन मिल गई, तो वी कैन इक्वेट द टू फर्स्ट एंड सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बताइए प्लीज क्या आ जाएगा बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा P पाई आर स्क्वायर, शाबाश, P पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर टी, 2 पाई और यहाँ पर बेटा R और यहाँ पर T, देखो पाई एंड पाई कैंसिल, ठीक है ना, एक R इसके साथ कैंसिल, सो पी आर यहाँ पर एक R बचा इज इक्वल टू ट्वाइस T, इसका मतलब है एक्सेस प्रेशर जो है वो होगा ट्वाइस T बाई R, ये देखिए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। So what is the excess pressure inside a liquid drop or rain drop? What is the excess pressure inside a liquid or rain drop? Twice T by R. Okay. But
अब बेटा इसका स्पेशल केस लेता हूँ, यू अंडरस्टूड इट, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इन रेन ड्रॉप, 2T/R, ओके। अब देखो बेटा, अब आगे क्या मैं बताने जा रहा हूँ आपको, देखिए आगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी, अगर हम इसका स्पेशल केस लेंगे, स्पेशल केस, मैं स्पेशल केस लूंगा, मैं बोलूंगा एक्सेस प्रेशर, सोप बबल लूंगा मैं, हाँ, एक्सेस प्रेशर, शाबाश, एक्सेस प्रेशर इनसाइड, शाबाश, इनसाइड सोप बबल, रेन ड्रॉप नहीं, इनसाइड सोप बबल, ये सोप बबल है, ठीक है, सोप बबल। अगर सोप बबल में ये क्वेश्चन है आपका, सपोज एज स्पेशल केस ले रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा। सोप बबल क्या होता है, ये जो लिक्विड होता है तो इसकी एक ही फ्री सरफेस होती है ऊपर से, सोप के तो दो फ्री सरफेसेस हैं, इनसाइड भी एक है, आउटसाइड भी एक है, दो फ्री सरफेसेस हैं सोप बबल में। इनके अंदर भी एयर है, गैस है ना, गैस, चाहे एयर है या कोई और गैस है, मगर गैस ही है, बाहर भी है, तो सरफेस दो साइड से बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सेस प्रेशर आएगा, सिंपली जो आपका रेन का आएगा उसका ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज टू सरफेस है, सो यूर P इज इक्वल टू 4T/R, ये सिंपली आएगा 4T/R, ट्वाइस, बिकॉज टू सरफेस मीन्स आपको इसको ट्वाइस मल्टीपल करना है, यू विल लेफ्ट विद P इज इक्वल टू 2T/R। और ये है, आज आपको पता चला व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप, 2T/R, एंड व्हाट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, सो वो आया 4T/R। बट इन बोथ द केसेस हमने सीखा, इन बोथ द केस एक्सेस प्रेशर जो है, दैट इज इन बोथ द केसेस हमने सीखा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, बेटा ये हमने सीखा बोथ द केस। सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहता है, हर किसी सरफेस के लिए सरफेस टेंशन अपना अपना होता है। जैसे मैंने बताया सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वाटर, अगर वाटर का लेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका आता है 72 मिली न्यूटन पर मीटर। अगर हम मरकरी का लेंगे वो होता है 500 एट 20 डिग्री, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो मरकरी का सरफेस टेंशन है 500 मिली न्यूटन पर मीटर। लेकिन याद रखना लिक्विड में, मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो कॉमन लिक्विड है, सबसे ज्यादा लगभग सरफेस टेंशन लिक्विड वाटर का ही है, मरकरी को छोड़ के, ये तो मेटल है, ये लिक्विड है, लेकिन जो कॉमन अदर लिक्विड्स है उनमें से उसका अच्छा खासा सरफेस टेंशन है। सो हमने देखा दिस सरफेस टेंशन इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट और 2 इज कांस्टेंट, तो हमने सीखा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R रेडियस। अगर आप छोटे जब थे, आपने बैलून को फूंक मारी होगी, तो आपने क्या देखा, जब बैलून अभी ग्रो होना शुरू हो जाता है उस वक्त इसका रेडियस कम होता है, तो ज्यादा एक्सेस प्रेशर चाहिए इसको स्टेबिलिटी के लिए, कर्व्ड स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा एक्सेस प्रेशर, मीन्स आपको फिर बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है उसको ग्रो करने के लिए। बट वंस इट ग्रोज, जब रेडियस लार्ज हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर कम चाहिए, तो आपको कम चाहिए प्रेशर, तो आपको एकदम वो ग्रो हो जाता है जब वो बड़ा रेडियस होता है। फिर से मैं एक बार बोलता हूं, जब बैलून आपके पास होता है, जब उसका रेडियस कम होता है, बिकॉज कम रेडियस मोर एक्सेस प्रेशर, इट रिक्वायर्स मोर एक्सेस प्रेशर, तो आपको उस वक्त बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है इसको ग्रो करने के लिए, जब रेडियस कम होता है बैलून का। लेकिन जब आप वंस इट ग्रोज आउट, जब ये ग्रो आउट हो जाता है, फिर आपको एक्सेस प्रेशर, रेडियस बढ़ जाएगा, एक्सेस प्रेशर कम चाहिए, आपको कम एक्सेस प्रेशर चाहिए, तो फिर आपको देखो वो आसानी से फिर फूल जाता है, तो मतलब उतना ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये आपकी उसके एक एग्जांपल है जो आप घर में कर सकते हो और आप रियलाइज कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। अब देखिए फर्दर मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, कुछ एग्जांपल सरफेस टेंशन के ऊपर दूंगा, कुछ एग्जांपल। सरफेस टेंशन मैंने बोला, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है कि एक सरफेस मिनिमम एरिया लेती है। मैं एग्जांपल लूंगा सरफेस टेंशन पे, एग्जांपल्स ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो, एग्जांपल्स ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। देखिए एग्जांपल्स ऑन सरफेस टेंशन, फ्यू एग्जांपल्स ऑन सरफेस टेंशन, फ्यू। देखिए फॉर एग्जांपल आपका एक यहाँ पर लिक्विड है, आप पेंटिंग ब्रश यहाँ डाल रहे हो अंदर, पेंटिंग ब्रश, ये पेंटिंग ब्रश, इसके जो हेयर हैं वो हेयर हैं सेपरेट आउट हो जाते हैं, देखिए सेपरेट आउट हो जाते हैं, हेयर सेपरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन व्हेन यू एक्चुअली गेट दिस पेंटिंग ब्रश आउट ऑफ दिस लिक्विड से बाहर निकालोगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो ये हेयर जो है, ये हेयर्स किलिंग हो जाएंगे लाइक दिस, ये किलिंग हो जाएंगे, किलिंग एक दूसरे के साथ, दे विल किलिंग विद ईच अदर, व्हाई, बिकॉज वो चाहता है हेयर कि मुझे मिनिमम सरफेस एरिया रहे, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। देखा होगा आपने, जो ब्रश होगा पेंटिंग ब्रश, उसको आप लिक्विड में डाल दो, वो हेयर उसके हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब हम बाहर निकालेंगे, बिकॉज वो लिक्विड चाहता है मुझे मिनिमम सरफेस रहे, तो वो हेयर जो है ब्रश के वो क्लिंग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। आप घर में भी देख सकते हो, है ना, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ऐसे अगर स्विंग नीडल है, आप स्विंग नीडल को किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर देख सकते हो फ्लोट कर रहे हैं, सपोज दिस इज स्विंग नीडल, इसका टॉप है, साइड का टॉप, तो लिक्विड सरफेस यहाँ बैंड हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी, लाइक दिस, डिप्रेस हो जाएगी, जहां पर ये नीडल है ना वहां डिप्रेस हो जाएगी।
सो द सरफेस टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस. देखिए टेंजेंट टू द सरफेस, यहाँ से हियर टेंजेंट टू द सरफेस लाइक दिस. इसका रिजल्टेंट सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट यहाँ से आएगा. दिस रिजल्टेंट बैलेंस आउट द वेट, जो वेट आता है ना किसका, स्विंग नीडल का. ये स्विंग नीडल का जो टॉप है ना, साइड का हम देख रहे हैं व्यू, साइड व्यू देख रहे हैं, तो टॉप, तो ये डिप्रेस कर रही है थोड़ी सी सरफेस को. तो यहाँ से एक टेंजेंट टू द सरफेस टेंशन आएगा, एक टेंजेंशियल टू द सरफेस, यहाँ से डिप्रेस्ड सरफेस को टेंजेंशियल टू द सरफेस. इन दोनों का ये वेक्टर है, चूंकि वेक्टर है रिजल्टेंट यहाँ से आएगा. तो ये जो रिजल्टेंट है दैट बैलेंसेस आउट द वेट, और ये फ्लोट कर रही है. आपने कभी सुना है कि एक स्विंग मशीन की जो नीडल है वो फ्लोट कर सकती है? यस, कर सकती है. जब कब कर सकती है फ्लोट? जब आप जेंटली उसको ड्रा करोगे, जेंटली, और किसी जेंटली ड्रा करोगे, हॉरिजॉन्टली ड्रा करोगे, तो आप देखोगे कि जब सरफेस टेंशन डिप्रेस करेगी उस सरफेस को, वाटर सरफेस को, किसी और लिक्विड सरफेस को, जो वो एक्ट कर रही है सरफेस टेंशन की वजह, वो इलास्टिक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन जैसी एक्ट कर रही है वो सरफेस, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. जो सरफेस जो एक्ट कर रही है एज ए इलास्टिक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन. तो हमेशा जो सरफेस टेंशन होता है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है, लाइक दिस, लाइक दिस. तो डिप्रेशन की वजह से इसका कंपोनेंट यहाँ से, इसका यहाँ से, तो रिजल्टेंट यहाँ से आएगा, और वो रिजल्टेंट बैलेंस आउट करता है वेट को, तभी जाके फ्लोट कर रहे हैं. और आपने जो घरों में देखा होगा, बाहर अगर आप गए होंगे साइड में फील्ड्स में वगैरह, आपने देखे मस्किटोज जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, बिकॉज जहां वो अपने लेग्स रखते हैं वहां वो डिप्रेस करते हैं पानी के सरफेस को. वो जो सरफेस टेंशन की वजह से एक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन जैसा होता है, तो वो वहां डिप्रेस होता है जहां पर लेग्स होते हैं. तो चूंकि एक सरफेस टेंशन का यहाँ से कंपोनेंट, एक यहाँ से टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो उनका रिजल्टेंट यहाँ से आता है, तो वो वेट को बैलेंस करते हैं. उसके जितने भी टांगे हैं उतने सारे वेट को बैलेंस करते हैं. हर कोई रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ से रिजल्टेंट कंपोनेंट आ जाएगा टेंशन का, तो वो वेट को बैलेंस करेगा. इस तरीके से जो मस्किटो है वो भी क्या करते हैं, फ्लोट करता है किसके ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर, जो कि सरफेस टेंशन की वजह से कैसे एक्ट करते हैं, एज ए स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन. ये कुछ एग्जांपल से हो सकता है इससे आपकी इंटरेस्ट आ जाए इसकी तरफ. तो चलिए आप फर्दर जाएंगे, हम आपको कुछ पढ़ाएंगे. और कैपिलरिटी, ठीक है, एक कैपिलरिटी जो है, कैपिलरिटी इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन. इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, ठीक है, कैपिलरिटी, ठीक है. तो हम बताएंगे कैपिलरिटी. कैपिलरिटी, ये कैपिलरिटी जो है इट इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन, एन इंटरेस्टिंग phenomenon of surface tension. ये जो है ये सरफेस टेंशन से ही जन्म लिया हुआ है, ये सरफेस टेंशन की ही बदौलत है. इसीलिए हम बोल रहे हैं ये एक प्रॉपर्टी है ऐसी जो किसकी वजह से है, ये एक फिनोमिना किससे हुआ है, सरफेस टेंशन की वजह से. तो व्हाट इज कैपिलरिटी? कैपिलरिटी होता है कि मैं पहले आपको बताऊं, समझाऊं, फिर आप उसके बाद आप कैपिलरिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं. तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक फिनोमिना है, इंटरेस्टिंग फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन है. मैं समझाता हूं कैपिलरिटी क्या है. देखिए बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं फिर से बनाता हूं एक बार, ऐसे फिर से लिक्विड बना लूं, ठीक है, शाबाश. तो यहाँ लिक्विड लेता हूँ, वाटर लेता हूँ, वाटर, चलिए वाटर लेता हूँ, और यहाँ से दूसरा मरकरी लेता हूँ, यहाँ से मरकरी, ठीक है, यहाँ से मरकरी लेता हूँ, लिक्विड लेता हूँ, मरकरी, शाबाश. व्हाट विल हैपन? अब मैं कैपिलरी ट्यूब लाऊंगा, कैपिलरी ट्यूब, दो रेडियस की कैपिलरी ट्यूब, एक रेडियस का, एक छोटा वाला रेडियस और एक बड़ा वाला रेडियस, समझाने के लिए एक बड़ा वाला रेडियस, ठीक है. तो इसी तरीके से इसमें भी एक छोटा वाला रेडियस का ट्यूब लूंगा, कैपिलरी ट्यूब, ओके, और एक बड़ा वाला लूंगा, देखिए बड़ा वाला लेता हूं, लाइक दिस. ये कैपिलरी ट्यूब है. मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज कैपिलरी ट्यूब. हमने ये डिप किया किसमें, हमने एक सिचुएशन में वाटर में किया, दूसरे सिचुएशन में मरकरी में किया. व्हाट विल हैपन, ठीक है. मैं थोड़ा सा और नीचे लाऊंगा इसको ताकि समझाऊंगा पूरा, उसको भी नीचे लाऊंगा. देखिए, अब देखिए इधर, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये लिक्विड जो है ना इस कैपिलरी ट्यूब में राइज हो जाएगा, सी सपोज राइज, बट ये वाटर है, तो ये कौन सा मिनस्कस बनाएगा, कनकेव मिनस्कस. तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ऐसे कनकेव. तो यहाँ भी कनकेव, यहाँ भी कनकेव मिनस्कस, यहाँ भी कनकेव. वाटर है तो गिलास के साथ ये कॉनकेव बनाएगा. तो ये मरकरी है, ये कॉन्वेक्स बनाएगा, ठीक है, ये कॉन्वेक्स, बाहर से कॉन्वेक्स, अंदर से क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ. ये लिक्विड देखा गया, ये राइज कर रहे हैं, ये राइज कर रहे हैं, देखिए राइज कर रहे हैं, हाइट ऑफ द लिक्विड से राइज कर रहे हैं. देखो कितना हाई हो रहा है, राइज. इसमें भी राइज करेगा, चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसलिए हाइट कम आ जाएगी, यहाँ हाइट कम हो जाएगी, देखिए हाइट कम, यहाँ हाइट कम आ जाएगी.
तो राइज तो दो सिचुएशन में किया, लेकिन क्या है, हाइट कम आ गई इसमें जिसमें लार्ज रेडियस है। अब यहाँ देखिए बेटा, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी राइज करेगा, लेकिन इसमें भी राइज कॉन्वेक्स, ये देखिए यहाँ तक, इसका मैं दिखाऊंगा h, और यहां कम हो जाएगा, यहां h देखिए। अब दोनों सिचुएशन में देखिए, द लिक्विड राइजेस इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, ये राइज किया above the free surface of the liquid, above the free surface of the liquid, ठीक है ना, above the free surface of the liquid. Here in case of mercury, the liquid rises inside a capillary tube but below the free surface of the liquid, because this is free surface of the liquid. यहाँ ना ये free surface, क्यों free, ऊपर से वेपर नीचे से लिक्विड, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। यही सरफेस तो फ्री है, बाकी बंद है, तो ये फ्री सरफेस है लिक्विड की, ये फ्री सरफेस है। तो हियर वाटर राइजेस इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब दैट बट अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। हियर वाटर राइजेस, इसमें मर्करी राइज हुआ, हियर मर्करी राइजेस इनसाइड ए लिक्विड ट्यूब बट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर फ्री सरफेस जो है इससे बिलो ही रहा, ठीक है, ये फर्क है, ये फर्क है आपको, जहां पर वाटर जैसा लिक्विड है यानी जो कनकेव मिनस्कस बनाता है, और जैसे मर्करी लाइक लिक्विड है जहां पे कॉन्वेक्स मिनस्कस बनाता है। राइज तो दोनों सिचुएशन में कर रहा है, द लिक्विड राइजेस इन बोथ द सिचुएशंस, बट इन सिचुएशन नंबर 1 वेयर वाटर इज लिक्विड इट राइजेस अबव द फ्री सरफेस, but in situation number 2 the liquid rises but below the free surface. So can you now define the what is capillarity? हम बोलेंगे the capillarity, which is actually an interesting phenomenon of surface tension, the capillarity is the rise of liquid in a capillary tube, ठीक है ना, the rise of liquid in a capillary tube is called capillarity. capillary tube में जो liquid का rise होता है खुद ब खुद, कोई मोटर नहीं लगा होता है, मोटर के बगैर rise होता है, इसको बोलते हैं capillarity और capillary action. capillary action भी इसको बोल सकते हैं, एक एक्शन है, ठीक है, एक काम है, तो ये एक्शन है, तो आप बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कोई मोटर नहीं लगा होता है, इटसेल्फ हो जाता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। कैसे होता है सरफेस टेंशन की वजह मैं अभी बोलूंगा, लेकिन फिलहाल आप सोचो, फिलहाल आप समझो दैट कैपिलरिटी इज द राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। रहा याद? अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये राइज होता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, उसको अंडरस्टैंड करना है आपको, कैसे लिक्विड राइज होता है वो अंडरस्टैंड करो, कैसे राइज होता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहां पर समझाऊंगा, यहां मान लीजिए ये लिक्विड है, थोड़ा सा बड़ा लूंगा, ये मान लीजिए ये इसका मिनस्कस हो गया, ये देखिए ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है जिसमें ये लिक्विड राइज हुआ है, जिसमें ये राइज हुआ है लिक्विड, देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, राइज हुआ है लिक्विड, ये मिनस्कस है, मैंने मिनस्कस में 3D मैंने बनाया, 3D। सपोज इसका रेडियस r है, मान लीजिए r है, अगर यहाँ से r है तो यहाँ से भी r है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यहाँ से r है तो यहाँ से भी r है, बिकॉज ये हेमिस्फीयर जैसा है, लिक्विड यहाँ तक है। सो ये यहाँ तक मैं हाइट h लिखता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ इसके सीध में मैं हाइट h लिखता हूँ, ये देखिए h, और ये जो है ये r है, बिकॉज आप जानते हैं दिस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यही r है। अब देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द सरफेस टेंशन विल एक्ट टेंजेंट टू द सरफेस लाइक दिस विल बी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, जैसे मैंने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको समझाया। तो एवरी एक्शन इज इट इज रिएक्शन, इसकी रिएक्शन यहाँ से आएगी, दिस विल बी, अगर ये सरफेस टेंशन T है, दिस विल बी R एंड दैट R विल बी इक्वल टू T, बिकॉज ये रिएक्शन है तो वो सरफेस टेंशन के बराबर होगा। सिमिलरली इस साइड में भी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस साइड में भी वही होगा, ओके, द T विल एक्ट एज टेंजेंशियल, और ये पॉइंट ऑफ दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, एंड हियर इट विल बी रिएक्शन, और रिएक्शन, बट रिएक्शन इज इक्वल टू टेंशन। अब बेटा इसके कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट तो यहां से, ये T है तो मैं कंपोनेंट बना रहा हूं, एक कंपोनेंट तो यहां से बनेगा, बिकॉज अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझा करो। सो यहां अब जब कंपोनेंट्स में आप लोगे, रिजॉल्व करोगे, तो यहां से एक कंपोनेंट और यहां से दूसरा कंपोनेंट, तो ये आएगा आपका T साइन थीटा, और बेटा ये आएगा आपको T कॉस थीटा, बिकॉज जहां से बेस होती है ना वहां से कॉस कंपोनेंट लेना होता है, जहां से बेस, तो ये बेस सीधे मैंने T कॉस थीटा लिखा, T का T कॉस थीटा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर साइड होता है T साइन थीटा। सिमिलरली जहां से बेस होती है वहां से आप T कॉस थीटा ले सकते हो, दिस इज T कॉस थीटा, और यहां एक कंपोनेंट जो होगा ये होगा
ये होगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, देखा बेटा, टी साइन थीटा। अब आप देख लीजिए आप क्या करोगे, देखिए अब ये राइज क्यों हुआ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम यहां पर आपको बताएंगे ये राइज क्यों हुआ। तो हम बोलेंगे आपको सो कैपिलरिटी एक्शन बाय मेथड ऑफ सरफेस टेंशन, ओके ठीक है। तो कैपिलरिटी कैसे होते हैं और सरफेस टेंशन भी से कैसे हो जाते हैं, हमने पहले ही बोला दैट कैपिलरिटी इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। देखिए इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, ये मैं अलग से लेता हूं, अलग से मिनस्कस। तो इस मिनस्कस के इर्द गिर्द देखो यहां से साइन कंपोनेंट टी साइन थीटा, यहां से भी टी साइन थीटा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अगर यहां से टी साइन थीटा होगा, इसका अपोजिट यहां से होगा 3D ना, ये 3D है ना सब साइड में टी साइन थीटा। अगर यहां से टी साइन थीटा होगा, इसका अपोजिट जो होगा टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा ऑल अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस मिनस्कस ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसी तरह इसका ये। और जो ना टी कॉस थीटा, ये देखो इधर को भी है टी कॉस थीटा, एक मिनट को इसको दूसरा कलर में इस्तेमाल करूंगा, इधर को भी है टी कॉस थीटा, देखिए इधर को भी है टी कॉस थीटा, 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 मतलब ऑल अलोंग द सर्कमफ्रेंस। ये देखिए ऑल अलोंग द सर्कमफ्रेंस, अप साइड होगा क्या, टी कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ जो सरफेस टेंशन है टी कॉस थीटा वो होता है फोर्स पर जो है ना, ऐसे मैं बोलता हूं, देखो प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर लेना, इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ये टी कॉस थीटा कितने टी कॉस थीटा है, कितने टी कॉस थीटा है, दिस इज ऑल अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस मिनस्कस 2 पाई आर, मिनस्कस का रेडियस आर है, इट इज ऑल अक्रॉस द मिनस्कस। सो कितने टी कॉस थीटा 2 पाई आर, तो यही हमें देगा, क्या देगा, फोर्स, ये हमें देगा फोर्स। बिकॉज आप जानते हो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एफ बाई एल, टी इंटू एल इज इक्वल टू एफ। सरफेस टेंशन लेंथ, सरफेस टेंशन तो यहाँ टी कॉस थीटा है, लेंथ तो सर्कमफ्रेंस बन गई 2 पाई आर, वही हमें फोर्स देगा। कौन सा फोर्स, जो अपवर्ड है। सो टी कॉस थीटा की वजह से जो फोर्स आता है वही अपवर्ड, वही राइज इसको कराता है। तो आप बता बेटा कितना है वो, कोई बोल सकता है कितना है वो एफ, वो एफ होगा टी कॉस थीटा नहीं, बल्कि ऑल अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर कॉस थीटा। अगर कोई आप में से कैलकुलस में इंटरेस्टेड है वो पहले पॉइंट पे दिखाएगा डी एफ, फिर लिखेगा टी कॉस थीटा डी एल, ऐसे लिखेगा, फिर इंटीग्रेट करेगा, डी एंड डी कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो एफ कम्स आउट टू बी टी कॉस थीटा इंटू एल, वो एल बताएगा वो सर्कमफ्रेंस, फिर लिखेगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा। जिसको कैलकुलस आता है उसको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ पर सिंपली बताया बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो होते हैं मेडिकल स्ट्रीम से हो सकते हैं, तो उनको मैथमेटिक्स थोड़ा वीक होता है, तो मैंने ये किया ऑल अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस, सो 2 पाई आर इज इक्वल इनटू टी कॉस थीटा, दिस इज फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, ये वही फोर्स है जिसको ऊपर की साइड है, जिसको अपवर्ड्स ले रहे हैं, जिसको राइज करा रहे हैं, यही कैपिलरिटी एक्शन है। टी साइन थीटा तो कुछ नहीं करा, वो बैलेंस आउट हो जाते हैं सारी, लेकिन टी कॉस थीटा ऑल अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस मिनस्कस उसको ऊपर खींच रहे हैं, और वही फोर्स उसको राइज करवा रहा है, वही कैपिलरिटी कहलाती है। द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरिटी इज कॉल्ड कैपिलरिटी, वही कैपिलरिटी कहलाती है। देखो बेटा फिर से बोलता हूँ एक बार, ये है फोर्स, ठीक है, जो इसको कहाँ अपवर्ड ले रहा है, कहाँ तक लेगा, अरे ये मतलब कहाँ तक चढ़ाएगा, इन्फिनिटी तक चढ़ाएगा इसको, नहीं, देयर मस्ट बी सम बैलेंस, कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा। कहाँ रुकेगा, जहां वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम बिकम्स इक्वल टू द दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये वहां रुकेगा। राइज जो हो जाएगा लिक्विड, कहां तक राइज होगा, इन्फिनिटी तक नहीं, ये इन्फिनिटी तक नहीं होगा, बल्कि वहां तक जहां तक जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो होगा किससे बैलेंस, इस एफ टी कॉस थीटा से बैलेंस हो जाएगा। देखो तो सही, सो उस कंडीशन में जो एफ होगा वो वेट के बराबर होगा, जो एफ होगा हमारा वो एफ जो है हमारा, देखो ये समझ लो, ये प्लीज, व्हाट इज दिस, दिस इज कंडीशन ऑफ बैलेंस, बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन, फिजिक्स में इसकी बहुत अहमियत होती है, बैलेंसिंग कंडीशन, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन, ये है बैलेंसिंग कंडीशन, जब जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो वेट के बराबर आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स। तो अब ये जो सरफेस टेंशन के से फोर्स आया वो आया 2 पाई आर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट, वेट किसका, लिक्विड कॉलम का, वेट जो होता है वो मैस ऑफ लिक्विड इंटू जी, लिक्विड कॉलम का जो मैस है वो m है, मान लीजिए m है, और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये समझ में आया होगा सबको। 2 पाई आर टी कॉस थीटा यहां से सीखा आपने कैसे आया, किससे फोर्स आया, सरफेस टेंशन की वजह से, इसीलिए राइज करा रहा है, इज इक्वल टू mg, mg क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड। देखिए
अब ये मैथ्स क्या है, 2 पाई आर टी कॉस थीटा, ऐसे ही चलाएंगे। देखिए ये मैथ्स क्या है, किस किस का मैथ्स है, कैसे निकालेंगे इस लिक्विड कॉलम का मैथ्स। पहले मैं इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सपोज डेंसिटी इज डेंसिटी सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की डेंसिटी है। हम सब जानते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्री क्लास से, क्या जानते हैं, मैस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैंने लिखा क्या, वी सिग्मा, बिकॉज क्यों, मैस इज इक्वल टू सिग्मा वी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए फर्दर मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए तो सही, मैं क्या करूंगा यहाँ पर फर्दर ऐसे करूंगा। ये वॉल्यूम किसका है बताइए, 10th में आपने जो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कैसे हम वॉल्यूम निकालेंगे। देखो एक तो ये यहाँ हाइट h दिया है मैंने, यहाँ तक तो सारा आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर ऑफ हाइट h प्लस ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r जिसका रेडियस r इस मिनस के बराबर है, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कोने में जो लिक्विड है तो ये उसमें कैलकुलेट हो जाएगा, यानी इतना जो है ये सिलेंडर ऑफ हाइट r है और उसमें से एक काटना है माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए मैं इसके वॉल्यूम किससे बराबर है। सो 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉल्यूम किसके बराबर है, ये वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h, उसका है पाई आर स्क्वायर h, है ना, आ गया इतना वॉल्यूम हाइट h तक, शाबाश, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r होगा पाई आर स्क्वायर, उसकी हाइट भी r है r, देन माइनस इसमें से काटना है माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर, 1/2 इंटू 4/3 पाई उसका जो रेडियस है r क्यूब, यही तो होगा, इतना वॉल्यूम होगा सारा, आ गया वॉल्यूम। फिर सिग्मा जी अपना सिग्मा जी। अब देखिए यहाँ पर दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये पाई आर क्यूब आएगा, ये आएगा माइनस 2 2 जार 4 2/3, देखिए 2 2 जार 4 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, गॉट इट। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर मान लीजिए 3/3 पाई आर क्यूब, मान लीजिए बिकॉज 3 मल्टीपल 3 डिवाइड, 3/3 पाई आर क्यूब 2/3, 3/3 को 2/3 माइनस करो, वहाँ रहेगा 1/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। अगर नहीं आएगा तो एलसीएम निकालना है, ठीक है, या तो आपको यही जवाब आएगा। सो देखिए फिर आपको यहाँ से फर्दर क्या करेंगे, दिखाएंगे आपको। दिस इज इक्वल यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ ब्रैकेट में रहेगा h प्लस और डिवाइड बाई 3, देखिए यही रहा। यहाँ से क्या है, यहाँ से भूल तो नहीं गए हो, यहाँ से 2 पाई आर, शाबाश 2 पाई आर टी कॉस थीटा, बेटा देखिए और एंड आर कैंसिल एक, तो बचा क्या, पाई एंड पाई कैंसिल, बचा ट्वाइस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर बचा h प्लस आर बाई 3, ये बचा। ठीक है ना, देखिए हम कैसे सरफेस टेंशन बाय मेथड ऑफ कैपिलरिटी कैसे करेंगे यहाँ पर, इसीलिए कैपिलरिटी के साथ पढ़ा हमने ये सरफेस टेंशन निकालने के लिए। देखिए सुनिए तो मेरी बात, यहाँ जो इफ रेडियस ऑफ ट्यूब जो होता है, रेडियस ऑफ ट्यूब होता है स्मॉल एज कम्पेयर टू द हाइट ऑफ ट्यूब, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड सिंस आर इज वेरी वेरी स्मॉल, जो रेडियस बहुत कम होता है ना ट्यूब में एज कम्पेयर टू द लेंथ, सो वी कैन नेग्लेक्ट, सो आर कैन बी नेग्लेक्टेड, शाबाश नेग्लेक्टेड। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एच, तो बताइए क्या रहेगी फॉर्मूला, 2t cos थीटा इज इक्वल टू, और यहां पर रहेगा h ओनली, ठीक है, वो नेग्लेक्ट किया, हाँ मैं भूल गया इसके साथ, और सिग्मा जी इसके साथ है, ठीक है, सिग्मा जी, ये सिग्मा जी, यहाँ पर सिग्मा जी इसके साथ था, ठीक है, सिग्मा जी, ओके गॉट इट। सो नाउ t जो है दिस इज इक्वल टू और h सिग्मा जी डिवाइड बाई ये जो है 2 cos थीटा, यहाँ लाइए 2 cos थीटा, व्हाट इज दिस थीटा, अगर याद होगा आपको, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए बेटा प्लीज देखिए, फॉर प्योर वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है 0 डिग्री, विच इंप्लाइज शाबाश ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर बेटा। सो देखिए t इज इक्वल टू आर एच सिग्मा जी डिवाइड बाई 2, ये देखिए ये आंसर है। देखो कैपिलरिटी से आप क्या निकालते हो, सरफेस टेंशन। अब इस क्वेश्चन का अपना टाइटल भी दे सकते हैं, पहले कैपिलरिटी पढ़ी, बताया द राइज ऑफ लिक्विड ने कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड द कैपिलरिटी, एंड फर्दर मैंने क्या बताया आपको कि ये जो हम निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन बाय मेथड ऑफ कैपिलरिटी। देखिए सरफेस टेंशन निकालना आप लैब में निकाल सकते किसी भी लिक्विड का। पहले क्या 11th के स्टूडेंट्स अक्सर बेशतर मुझे ये पूछते रहते हैं, सर सरफेस टेंशन कैसे निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं सरफेस टेंशन,
टी इज इक्वल टू आर एच सिग्मा जी बाई टू। आर जो है व्हाट इज आर, द रेडियस ऑफ ट्यूब, वो हम निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। एच जो है हाइट ऑफ ट्यूब, ये ट्यूब अगर आप देख रहे हो इसका रेडियस, कैसे निकालना मैं बताऊंगा भी। और इसी की हाइट एच है, तो वो तो हाइट हम देख सकते हैं, वो तो हम स्केल से नाप सकते हैं। सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर इस्तेमाल किया 997 kg पर मीटर क्यूब, मरकरी इस्तेमाल किया तो 1261 kg पर मीटर क्यूब। आप समझ गए ना, तो वो तो हमें जुबानी पता होती है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है, टू सबको पता है। नाउ आपको सिर्फ क्या करना है, एक हाइट निकालनी है लिक्विड कॉलम में जो एच है, ये अगर सॉरी मुझे गलती हो गई, ये हाइट जो है निकालने की कैसे निकालनी है, ये निकालनी कैसे है, राइज कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा, और जो रेडियस ऑफ द ट्यूब वो कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। 2 मिनट दीजिए, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, आज इतना ही फिर पढ़ाऊंगा। देखिए बेटा, ये जो है, ये अगर आप देख रहे हो वहां पर, इधर को आपको देख रहे हैं, दिस इज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, दिस इज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अगर लैब में आप जाओगे तो लैब में आप ये चीज पाओगे लैब में। ओके फाइन, दिस इज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। एंड ये आपको एक वाटर लेना है जिसका आपको सरफेस टेंशन निकालना है, लिक्विड का, या अगर आपको किसी और का ग्लिसरीन का निकालना है, इसमें वही डालना है ग्लिसरीन। अगर वाटर का निकालना है आपको वाटर डालना है। तो यहां रख लीजिए आप इसको, इधर को इधर, फिर कोई बुक्स वगैरह जो है इसको नीचे कीजिए ताकि ये इतना राइज हो जाएगा। जब राइज हो जाएगा, ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये उस वाटर में या ग्लिसरीन में आ जाएगा, तो इसमें राइज हो जाएगा। जितना ये राइज हो जाएगा वही तो एच देगा हमारा ना। तो कैसे अब एच, अब कैसे मिनस्कस कैसे देखेंगे, आंखों से तो नहीं दिखेगा, बहुत छोटा मिनस्कस है। तो ये आपके पास ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, इसको ऐसे रख लीजिए क्योंकि इसमें वाटर राइज हुआ होगा। फिर माइक्रोस्कोप में से देख के ऐसे आपको वो मिनस्कस दिखाएगा। तो यहाँ रीडिंग उठानी है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कभी कैसे करना होता है, लेकिन आप रीडिंग उठाएंगे। यहाँ 2 स्केल्स होते हैं, एक अप स्केल एक डाउन स्केल, इस स्केल से आपको रीडिंग उठानी है। मिल गया एक पॉइंट, ये पॉइंट तो मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया। फिर जो ये नीडल है, इस नीडल को वहां रखना है जहां ये जस्ट टच करेगा वाटर को, जस्ट टच। फिर उसके बाद नीडल के ऊपर फोकस करना है। जब नीडल के ऊपर फोकस करोगे तो ये पॉइंट निकला आपको, ये पॉइंट निकला आपको, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से माइनस करो, यू विल कम, आपको एच मिलेगा। मिल गया एच। अब रेडियस क्या है, इसी माइक्रोस्कोप में से देखना है। जो मिनस्कस है बहुत बड़ा दिखेगा, मिनस्कस के इस साइड में फोकस करो, एक रीडिंग निकलेगी इस वाली स्केल पे, दूसरी स्केल जो राउंड है। फिर इधर को लाओ, दूसरी निकलेगी, तो आपको ये डाया मिल जाएगा। डायामीटर को डिवाइड बाय 2 करो तो रेडियस आ जाएगा। आ गया रेडियस, आ गई हाइट, दोनों यहां से निकाली आपने, वो आंखों से दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत जूम करके मिलेगा। सो आर भी निकला, एच भी निकला, सिग्मा आपको पता होगा, आपको मिलेगा, अगर याद भी नहीं होगा तो इंटरनेट से देखो। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपको पता है। 2 है वो आपको पता है। दिस वे यू कैन कैलकुलेट द सरफेस टेंशन। तो बेटा देखो कितना आसान होता है सरफेस टेंशन किसी चीज का निकालना। आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, माइक्रोस्कोप से आपके पास स्कूल में पढ़े हुए हैं, प्लीज मेक यूज ऑफ देम। अगर स्कूल खुले तो ये जरूर करना, सर के साथ कर लेना, सर को बताना, मैडम को बताना, वहां पर हमें दिखाई तो आप कर सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे लैब्स में ये चीजें पड़ी हुई हैं, हमें सिर्फ आपको दिखाना ही है बस। अगर खुले स्कूल ओपन हो जाएंगे तो हम आपको वहां भी दिखा सकते हैं। अब बेटा एक चीज याद रखना, अगर बोलेंगे फैक्टर्स विच इफेक्ट द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, तो आपको वहां पर बोलना है इंप्योरिटी इफेक्ट करता है। अगर हम किसी लिक्विड में इंप्योरिटी डालेंगे, उसकी सरफेस टेंशन चेंज हो रहा है। जैसे वाटर में डालेंगे, उसका सरफेस टेंशन कितना है मैंने आपको बताया, 72 मिली न्यूटन पर मीटर, तो वो जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर अब इंप्योरिटी किस किस्म की है, इंप्योरिटी की 2 किस्म है। एक किस्म है जो सॉल्यू हो जाता है उसमें, ठीक है ना, जो सॉल्युबल है। दूसरा जो इनसॉल्युबल है, जैसे साल्ट वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है ना, तो वो सॉल्युबल है, उससे वाटर की सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। याद रखना, उससे सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप डिटर्जेंट यूज करोगे, वो भी इंप्योरिटी है, डिटर्जेंट वाटर के लिए इंप्योरिटी है। हम क्या काम करते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन वाटर के लिए इंप्योरिटी है। जब हम डिटर्जेंट डालेंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम होता है। हम जानते हैं जब आपके पास ये जो है ये डिटर्जेंट लगाते हैं आप, लो सरफेस टेंशन वाटर से पसंद करते हो कपड़ा धोना, ठीक है ना। कपड़े जो हम धोते हैं किससे, लो सरफेस टेंशन वाटर से, क्योंकि जो डिटर्जेंट का वहां पर जो पार्टिकल है वो हेयर पिन लाइक पार्टिकल है। एक साइड से वो डर्ट के साथ कनेक्ट होता है, एक साइड से वाटर के साथ तो एकदम खींचता है उस डर्ट को कपड़े से। अब मैं आपको एक एग्जांपल पर जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, देखो क्या एग्जांपल है। अगर आपके पास कोल्ड वाटर है और आपके पास हॉट वाटर है, फिर आपको बोला जाएगा आपको ये क्लोथ साफ करने हैं, वॉश करने, किससे करोगे, व्हाट यू विल प्रेफर, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। यू विल प्रेफर हॉट वाटर। पता है क्यों, क्योंकि हॉट वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है कंपेयर टू द कोल्ड वाटर, कम होता है। तो इसलिए आप प्रेफर क्या करते हो, हॉट वाटर, बिकॉज हॉट वाटर नहीं चाहेगा, सरफेस टेंशन कम है, वो नहीं चाहेगा मिनिमम सरफेस एरिया, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहोगे हॉट वाटर से क्लोथ्स धोना,
बिकॉज उसका सरफेस टेंशन कम है। इसी तरीके से आपको दिया जाएगा हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, देन हॉट वाटर विद डिटर्जेंट। देखो डिटर्जेंट फर्दर उसका सरफेस टेंशन कम करेगा, तो यू विल प्रेफर हॉट वाटर विद डिटर्जेंट। इससे आपको हमेशा याद रहेगा। कोई आपको बताएगा, बताए इफेक्ट क्या होता है सरफेस टेंशन, किस किस का फैक्टर का इफेक्ट होता है, बोलते हैं टेम्परेचर का। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीज, याद आएगा क्योंकि हॉट वाटर से आप वॉश कर रहे हो क्लोथ्स, तो पता चल जाएगा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर उसके बाद आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, तो इम्प्योरिटी वो इम्प्योरिटी जो सॉल्व नहीं होती है, तो उससे सरफेस टेंशन कम होता है, पता चलेगा वो इम्प्योरिटी जो इनसॉल्युबल है उससे भी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो रहा है, आप उसी से वॉश कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सजाद फिजिक्स ये है @gmail.com, ये है मेरा ईमेल एड्रेस। ये है 9797012346, ये मेरा सेल नंबर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सेल नंबर पे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि दिन में हम रहते हैं ऑफिस में। लेकिन यू कैन मेल मी, मुझे टाइम मिलेगा आपको जवाब देने का, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जवाब दूंगा थ्रू मेल। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।